Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll start our next topic, which is actually related to safety in engineering, and specifically in civil engineering, because majority of work in civil engineering is related to construction, and there are a lot of labor, lot of property, and lot of other materials and many other things are involved in these construction activities. Safety procedures were very important, and in this lecture we will be discussing different aspects of these safety, and what are different safety measures you should take, and what type of safety procedure an engineering practitioner should adopt in order to ascertain that whether all the things are done according to SOPs of proper engineering practice, and obviously in order to ensure the safety of the people, property, and anything other used in that project or in that activity. अब यहाँ पे हम जो है ना वो बात करेंगे सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंजीनियरिंग में क्या होती हैं। मतलब आप जब इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स भी आप लगा रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप का फाइनेंशियल रिसोर्स भी लगा रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों की सेफ्टी का आपने क्या ध्यान रखना है और कैसे रखना है, वो ये इस चीज़ का इस जो लेक्चर हम करेंगे उसका सब्जेक्ट मैटर है। Starting with this an introduction of this topic, like when we talk about civil engineering, civil engineering industry is the biggest industry in the modern time, and obviously if you want to be you want to enter in a modern world, or you want to be developed develop in this modern world, it's very important that you should develop this industry in your country. And but while we are developing this industry, you can see that a lot of labor is required in this kind of industry, and this large amount of labor actually required that you have to see that their safety is have in consideration, and you have taken all the necessary steps in order to assure the safety of the labor working in that projects. But in Pakistan, we are not seeing potential safety procedure used in construction industry, and obviously it's a very serious issue, because it can create problems, it can create frustration among labor, and we need a very satisfied and very motivated labor in our growth in the growth of economy. So it's very important that you should not avoid the safety procedure in this kind of activity, because to build a productive workforce, it's very essential that the managers try to meet the workers' social, psychological welfare needs, to take steps to humanize work and working environment. And if we look into different managerial practices and different managerial aspects, so they also try to make it more humanistic, try to see that there are many psychological needs of or your labor, there are many social needs of your labor, so you have to ascertain all these things. Not only we see their physical health, but also their psychological health is also very important. अब यहाँ पर जो हम बात करें ना, वो ये कर रहे हैं कि आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है, ये एक बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्री है, और एक जो कंट्री जिसने जो डेवलप करना चाह रही है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में जाना चाह रही है, उसके लिए जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क होता नज़र आता है, मोटरवेज बन रही हैं, आपको जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, आपके जो है वो सी पैक का प्रोजेक्ट हो रहा है। तो तमाम जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके बीच में आप देखें तो लॉट ऑफ ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इन्वॉल्व है, जो लेबर क्लास है वो इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के इसमें देखें तो हमें नज़र आता है कि ऐसी सेफ्टी प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं किए जाते जो करने चाहिए, जो एक लेबर की सेफ्टी के लिए, हेल्थ और फिजिकल साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए ज़रूरी है।
सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करें और इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, क्योंकि आप यही लेबर फोर्स जो है वो आपके लिए एक ग्रोथ में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर यही सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये मोटिवेटेड नहीं होगा, तो काम जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो इस ह्यूमनिस्टिक जो है उनका जो अप्रोच है और साइकोलॉजिकल अप्रोच है और सेफ्टी जो अप्रोच है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए ये एक लेबर जो है, अगर उसको हर वक्त डर लगेगा कि मैं जो हूँ तो प्रॉपर इक्विपमेंट मैंने नहीं पहने हुए, तो ये जो है मुझे नुकसान पहुंच सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिकली जो है वो टेंस रहेगा। तो आपने उनको इस तरीके से सेफ्टी के लिए माहौल देना है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें। तो ये इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके पास मोटिवेटेड और बहुत जो है वो डेडिकेटेड वर्क फोर्स हो या लेबर फोर्स हो। Now, a little bit explanation about safety, that what is safety. As when we talk about safety, so it has a very vague kind of meaning, or you can say you cannot define safety in a very clear term, because it is related to many other factors. Like when we very often people use safety as adjustment in terms of inverse relationship with accident rate. Like when हम कहते हैं ना कि अगर जितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, तो हम उसमें उसके साथ उसको रिलेट करते हैं। अगर कहीं पे व्हेन हाई रेट मींस लो सेफ्टी एंड वाइस वर्सा। अगर हमें लगता है कि जी एक्सीडेंट का रेट हाई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी लेवल जो है वो लो है। और ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि वहाँ कहीं पे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो रहे ज़्यादा, तो हम कहते हैं वहाँ पे सेफ्टी लेवल हाई है। सो थ्योरेटिकली सेफ्टी वुड मीन्स द एब्सेंस ऑफ डेंजर एट वर्क, which is made possible by eliminating hazards that create the danger. लेकिन मतलब अगर हम थ्योरेटिकली देखें, बुकिश डेफिनेशन देखें, तो हम उसमें ज़्यादातर ये होता है कि हम कहते हैं कि सेफ्टी का मतलब ये है कि आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर मुख्तलिफ जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन चीज़ों को आप वहाँ से ख़त्म कर दें और आपका जो वर्क इन्वायरमेंट हो ना वो सेफ और साउंड हो। सो अगर इसके अलावा जो डेफिनेशन है, दैट एंड मोर प्रैक्टिकल डेफिनेशन वुड बी अ थिंग इज प्रोविजनली और कैटेगराइज्ड एज सेफ इफ इट रिस्क आर डीम्ड नोन एंड इन द लाइट ऑफ नॉलेज जस्ट टू बी एक्सेप्टेबल। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर सेफ्टी आपको, अगर आपने सही प्रॉपर प्रैक्टिकल डेफिनेशन सेफ्टी की देखनी है, तो वो ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है उसका रिस्क आपको सब नज़र आ रहा है, पता चल रहा है उसकी क्या रिस्क है, और आपने जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे ये जज किया कि इसका जो है ना इतना ज़्यादा नुकसान नहीं और ये एक्सेप्टेबल है, तो हम कहेंगे वो चीज़ जो है सेफ है। इसके अलावा सेफ्टी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एंटरप्राइज ऑपरेशन इन विच बाय कंट्रोलिंग हैजर्ड्स एक्सीडेंट फ्री प्रोडक्शन इज अचीव। मतलब अगर आप प्रोडक्शन साइट पे या आप जो है ना वर्क प्लेस पे देखें, तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन अगर ऐसा है जिसके बीच में आपने है नुकसान जो है ना, वो हैजर्ड्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाली चीज़, उसको आपने कंट्रोल कर दिया है और वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे प्रोडक्शन के दौरान, तो हम कहते हैं कि ये एक जो है ना वो सेफ इन्वायरमेंट है और ये सेफ्टी की जो है ना वो इंडिकेशन है कि वहाँ पे सेफ्टी है। सो सेफ्टी मुख्तलिफ टर्म है, जैसे बताया कि एक तो ये है कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपके एक्सीडेंट किसी जगह पे कम हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये जगह जो है ना वो सेफ है। फिर अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से देखें, तो हम कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की के जो रिस्क इन्वॉल्व है, किसी भी काम करने में रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क हमें पता है और हमें लगता है कि उसका कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, एक्सेप्टेबल है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ सेफ है। फिर हम कहते हैं कि अगर आप वर्क प्लेस पे देखें, तो अगर वर्क प्लेस मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपने जो है ना वो इस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है कि आप जो है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं किसी को पहुँच रहा, प्लस वहाँ पे प्रोडक्शन के दौरान कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। एक्सीडेंट्स मीन्स जैसे खुदा न खास्ता जो है वो कोई जो है मशीन गिर गई है या किसी का हाथ कट गया है, इस किस्म के मेजर एक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं, या तो उसमें आप अगर इस किस्म की चीज़ें हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो सेफ साइट है या सेफ ऑपरेटिंग जो एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। As we are talking about issue of safety, so why does the issue of safety arises?
as we are talking about construction projects, and when there is a frequent accident in the site, so there would be loss of labor, loss of money, time, and materials, and overall there would be a loss of reputation of the builder as well. So it's not very it's not very beneficial, or it's very threatening for any builder or any project manager, that they should consider the safety procedure in their projects. लाइक देखिए, जब हम इसमें बात करते हैं ना कि सेफ्टी की हम क्यों बार बार बात करें, जब आप कंस्ट्रक्ट किसी भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लें या कोई भी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लें, तो उसमें यही है कि आपका जो फ्रीक्वेंट अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके बीच में ह्यूमन का भी लॉस होता है, उसके बीच में पैसे का भी ज़्या होता है, वक्त का ज़्या होता है, जो आप फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसका भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका जो लॉस होती है, वो आपकी एक रेपुटेशन है, क्योंकि जो बिल्डर जो है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करता है, तो फिर लोग उससे बनवाना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी प्रोसीजर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। Now, what are accident? Accident readily recognized when there is a damage to property and someone is injured. And generally, when we define accidents, it can be called as an event which is actually unexpected, and which the cause of which also not which is unforeseen. So, or it can also be defined as any occurrence that interrupts or cause of which is unforeseen. However, it is not always easy to determine to what extent the accident are the direct result of working environment only. अब यहाँ पर हम बात करें ना एक्सीडेंट का, यहाँ पे जब एक्सीडेंट की बात होती है, तो ऑब्वियसली जब एक एक्सीडेंट होता है तो हमें उससे डैमेजेस भी होते हैं, उससे इंजरीज भी होती हैं, और जनरली जब हम एक्सीडेंट को डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा वाक़या जिससे आपका जो 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 आप उम्मीद ना कर रहे हो, और जिसकी जो वजह है वो आपको समझ ना आ रही हो, और कोई ऐसी वाक़या या कोई ऐसी अकरस जिससे जो आपका यूजुअल जो काम हो रहा है वो उससे इंटरप्ट हो जाए, और उसकी हमें वजह ना पता चल रही हो कि क्यों हुआ है। सो हम जो कुछ भी है, लेकिन हमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है। और कभी-कभार ये जो आपका एक्सीडेंट होता है, वो इस वजह से सिर्फ नहीं होता कि आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देयर मे बी लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट एट वर्क साइट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में कॉज फटीग, इम्प्रॉपर लिविंग कंडीशंस एंड इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखते हैं ना कि अगर हम कहते हैं कि और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना कि आपने ऐसे इक्विपमेंट नहीं लिए जो प्रॉपर सेफ हो, या आपकी जो वर्क साइट है उसके बीच में जो है ना, आप लोग इतनी देर से काम कर रहे हैं कि वो इतना थक गए हैं कि अब वो उसमें उससे ज़्यादा और काम नहीं हो सक रहा, और वो आगे जो भी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से डैमेजेस हो रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं, या जो जिस जगह पर आप उनको रखा हुआ है, या जो जगह पर वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अजीब सी सिचुएशन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर जो है ना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक्सीडेंट जो है वो कॉज करती है। Now, when we discuss or when we talk about causes of accidents, there are many different causes, and we can broadly divide all these causes into three categories. One is human causes, second one is faulty working practices, and the other one is structural failure. So actually, when we talk about human causes, so it might be possible that the people employed on the project, it might be engineers, it might be workers, or it might be any other person, so they have lack of knowledge of that project, so which can result in causing accidents, or the person or the people have lack of interest in the work, the work they are doing, they don't like that work, they are being compared, or they are being they are not very interested, or not they are not very dedicated to that work. So obviously, when you have lack of interest in your work, so you will not dedicate all your interest or all your efforts in that, so it might be possible that it leads to certain type of accidents.
Other personal factors are like competency of the person, or personal problems of the person, domestic issues of different person involved in that project, and many other and other reasons which are actually related to the personal problem of any human, or any type of work or labor involved in that project. Then lack of skill, as we have discussed in code of ethics, that the person who has, or the engineer who take the responsibility of the project should have interest on that project, and he must have skill, have desired skill of doing that project. So the main reason is that they want to avoid accidents. So lack of skill can lead to many accident, or carelessness in supervision. Obviously supervisors are there, they monitor different type of activities, they see deviations. So when they are not performing their duty properly, and they are careless, so obviously it lead to accident. अब यहाँ पे हम ह्यूमन कॉजेज़ को देख रहे हैं ना, तो ह्यूमन कॉजेज़ तो इंसानों के साथ रिलेटेड है। मतलब ये हो सकता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं काम करने में, उनके पास मालूमात कम हो उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो ज़्यादा नॉलेज ना हो, या वो बहुत ज़्यादा उस काम में उनको इंटरेस्ट ना हो, वो किसी भी मजबूरी की वजह से, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी घर की परेशानियाँ हो सकती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से आप जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आप जो है निगलेक्ट हो गया है, तो वो आगे एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। देन लैक ऑफ स्किल मीन्स कि आपने वो डिज़ायर्ड स्किल नहीं है जो उस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए या कोई और वजह की वजह से आपने उसको कबूल कर लिया, अब आप उसको कर नहीं पा रहे। सो ऑब्वियसली जब आपके पास स्किल नहीं होगी, तो वो सर्टेन टाइम पे एक्सीडेंट्स जो है ना वो कॉज करने का वजह बन सकती है। देन केयरलेसनेस इन सुपरविजन, आपके सुपरवाइजर्स इसलिए होते हैं कि वहाँ पे उनको जहाँ भी लगता है कि काम गलत हो रहा है या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए जो है ना वो उस डेविएशन को कंट्रोल करे, और उस चीज़ को ख़राब होने से या एक्सीडेंट होने से पहले जो है उसको रोके। अगर वो भी अपना काम नहीं परफॉर्म करेंगे, तो फिर वो एक्सीडेंट्स जो हैं वो कॉज हो सकता है। The second problem is, or second cause is faulty working practices. Faulty working practices means that the contractor or the employer is using substandard material, or they are striking against objects, like they are not people properly using or carefully using different objects, or they are not using protective equipment, or they don't have site layout, so obviously they are not in a position to make certain arrangement which can avoid certain type of accident, or if they have improper storage space. So obviously when you don't have proper storage space, so different material will be damaged, and they have a certain problem. So अब यहाँ पे देखिए ना, सेकंड जो वो बात कर रहे हैं कि आपकी जो वर्क प्लेस पे जो आपके काम हो रहा है या प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो सही नहीं है, या तो आप अच्छा जो है ना वो मटेरियल यूज़ नहीं करें, अच्छा स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ नहीं करें, या आप ऐसे जो है वो काम करें जिससे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जो है ना वो टकरा रहे हैं, या आप जो है ना वो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा आप प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर से साइट का लेआउट आपको नहीं पता, और आप जो है ना वो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर सकते, या आपके पास कोई वेयर हाउस की फैसिलिटी या कोई गोदाम प्रॉपरली नहीं है, या अगर है तो आप कुछ मटीरियल्स होते हैं वो किस खास टेम्परेचर में या किस खास तरीके से रखने होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज स्पेस नहीं है, जो आगे उनको नुकसान का बाइस बन सकती है। देन स्ट्रक्चरल फेलियर, like a failure of foundation, faulty design and natural calamities. like a failure of a foundation का मतलब है कि obviously जब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो आपने जो लोअर फाउंडेशन है, क्योंकि सारी जो बिल्डिंग है उसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगी, अगर वो उसके बीच में आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, नहीं प्रॉपर हुआ हुआ, तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सीडेंट कॉज करेगी। या डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, बीइंग एन इंजीनियर आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि अगर आप डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बनाओगे, मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे, तो ऑब्वियसली वो एक्सीडेंट्स कॉज करेगा। या नेचुरल कैलामिटीज़ में आपको एक्सीडेंट्स हैं, आपके ये मुख्तलिफ नेचुरल कैलामिटी में से जो आपके नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है, आपका फ्लड्स हैं, या कोई और इसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके एक्सीडेंट्स जो है वो कॉज हो सकते हैं।
Now we have discussed different causes of these accidents. So these accidents are major problem because they can result in loss of life, loss of time, or even escalation of the project cost. So obviously, being a project head, or being the person who is involved in project, you are concerned about all these things, because if you have appointed human labor on your project, so obviously you have to take care of their safety. And secondly, when you have accepted a project, so every project has a completion date, and you have to complete that project in that specific time period and that specific cost. And if you are not able to complete that thing in proper time and proper cost, so obviously that would be considered as failure of a project. So it's very important that you should consider all those things. Like अगर आप जब बात करते हैं ना एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट तो हम को जो है वो टैकल करना या उसको मिनिमाइज करना, उसके चांसेस को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके जो ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व है या ह्यूमन जो भी किस तरह का इन्वॉल्व है, उसका लॉस हो सकता है, टाइम का लॉस हो सकता है, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें ज़रूरी है कि वो एक ख़ास टाइम पे एक ख़ास कॉस्ट के साथ कंप्लीट हो जाए, और आप एक ख़ास परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट करें। अगर उसको आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करते तो वो आपकी प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाता है। और ऑब्वियसली जो भी अगर एम्प्लॉयर है या जो भी आपका क्लाइंट है जो इस तरह का प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकली हैं, तो उनके लिए जो है वो एक बैड जो है वो रेपुटेशन हो जाएगी कि वो उनकी कॉस्ट भी एक्सीडेंट की कॉस्ट भी उनके प्रोजेक्ट की इंक्रीज हो रही है, टाइम पे भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली उसमें एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि हमने एक्सीडेंट को कोशिश करनी है कि वो मिनिमाइज हो जाए उसके चांसेस। Now, what are different ways through which we can ensure the safety of our project, or safety or workplace safety? So there are many ways in which we can assure, or we can try to assure the safety of obviously the human force involved in that project, and obviously so you take care of the time of that project and its cost. So there are different ways in which we can ensure the safety of the project. First of all, we can say that there is a significant role of a designer, that they should design a project in such a way that it can minimize accident, it can minimize the danger of a certain kind of accidents. Then there should be safety programs. The contractor or the employer have to initiate different type of safety programs, or they can also appoint a safety officer who the task of whom is that he has to ascertain that all the safety SOPs or standard operating procedure regarding safeties are being considered and are being operated. Then provision of personal protective equipment. Obviously, these personal protective equipment should be used in order to assure the safety of the people who are working on that project. So आप किस तरीके से वर्क प्लेस की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हो? सबसे पहले आपने डिज़ाइनर के रोल को सर्टेन करना है कि वो डिज़ाइनर जो है तो वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, जो ऐसा डिज़ाइन बनाए जिसके बीच में मैक्सिमम जो है वो सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखा जाए। या आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं आप स्टार्ट करें, और या आप एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर ले जिसका मेन जो है वो टास्क यही हो कि वो ये देखे कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी कि जो भी आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, या जो भी आपने सर्टन किए हुए हैं, उनको जो है वो फुलफिल करें। और इसके अलावा आप जो है वो वर्क स्पेस के ऊपर कोशिश करें कि हर बंदा जो है वो अपने PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है। सो इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, इनको हम डिटेल में वन बाय वन आगे स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। Now, role of the designer, and why the role of designer is very important, as we have discussed in the previous slides, that there are certain structural problem which can cause accidents, and obviously these structural problem or these structural causes
are arise from the very start, and obviously there are negligence of designer which has caused these structural problems. So in the development of project, a major role or very important role which is performed by designer is to design a project in such a way that it can ensure the safety of the whole project. So the major role played in this in the total structure of the project is by designer, and after that it's the responsibility of the constructor of the project. And a construction worker safety has often been regarded the sole responsibility of कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर. लाइक ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जी आपका जो कंस्ट्रक्शन में जो काम करें और जो कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन का, वो मेजर रोल प्ले कर सकता है सेफ्टी पे. But despite all reasons for placing the primary responsibility on the contractor, the safety program on a project may well be dictated to a large extent by decision made by the designer. Like the contractor is what contractor is doing, the construction contractor is doing is it is actually executing the design being proposed or trying to be developed by the designer. So the main responsibility arise on the shoulders of designer, because he is the one who has approved the design, and now the design was approved that design, and this design is actually being initiated or executed by the constructor contractor. So the major responsibility is on the shoulders of the designer. So मतलब यहाँ पे जो है ना वो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें ना, कि आप ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी को ध्यान रखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मेजर रोल जो है वो डिज़ाइनर का है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो तो वही कंस्ट्रक्ट करे ना जो डिज़ाइनर ने उसको असाइन किया. अगर उसने ऐसा डिज़ाइन बनाया है जिसमें मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो है वो आगे जाएंगे. तो आपका डिज़ाइनर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्रोजेक्ट का कोई भी डिज़ाइन बनाता है तो उसको हर तरह से सेफ्टी एश्योरेंस करने के बाद उसका डिज़ाइन अप्रूव करे. फिर वो जो अप्रूव होकर जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो फिर वो अगर उसको वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम लगता है तो उसको वहाँ पर डिस्कस करे डिज़ाइनर के साथ, उसको सेटल कर दे. लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइनर की है यहाँ पे. सो डिज़ाइनर व्हाइल डिजाइनिंग द बिल्डिंग में डिजाइन इट इन सच अ मैनर दैट इट बिकम ईजी एंड सेफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. यही चीज़ें उन्होंने कही है कि एक डिज़ाइनर जो है उसको इस तरीके से अपनी जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट उसको असाइन हुआ है, कि वो आगे जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है उसके लिए आसानी हो जाए कि वो स्ट्रक्चर को सेफ तरीके से बना सके. Now, safety program is also very important because most of the accidents that take place are due to negligence of the worker or supervisors. And because these people have lack of skill and lack of knowledge, that's why they actually become the reason of certain type of accidents. So this can be improved by holding safety training camps for the whole site workers and staff. Especially trained personnel should be hired to hold staff safety camps. अब यहाँ पे देखें, हमने अगर आपको देखें, हमने पिछले डिस्कशन की है कि आपके सुपरवाइज़र की या वर्कर्स की या और कोई लोग जो हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करे हैं उनकी स्किल या नॉलेज की डेफिशिएंसी की वजह से आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं. सो उसको आप किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, इसको ओवरकम किस तरीके से करोगे, कि आप जो हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स लगाओ, आप जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दो, आप उनको बताओ कि जी वर्क साइट पे अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम फ़ौरन किस तरीके से टैकल करेंगे, या उससे पहले एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किस तरीके से करेंगे. तो और इसके लिए आप जो है वो ट्रेंड लोग हायर करो जो आप इनको जो इन लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे. Whenever recruiting a new worker, the experience should be checked and adequate knowledge of the worker should be given to them. So obviously जब हम किसी भी बंदे को अपॉइंट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी प्रॉपर जो भी उसकी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल्स हैं, उन को प्रॉपर तरीके से चेक करें. क्योंकि अगर उसके पास एक जो है वो एडुकेट नॉलेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो जाके आपके लिए आगे प्रॉब्लम करेगा.
or its last is keep record of all the accident that took place. It will help you to ensure or minimize more accident in the future. And obviously you have to find out the causes of those accidents, and the many other related variables which have resulted in these accident. So it will help you to minimize more accident in the future. अब यहाँ पर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जितने एक्सीडेंट आपके हो गए हैं उनका आपने एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जो है वो फ्यूचर में इन जो भी आप एक्सीडेंट हुए हैं उनको उनकी कॉज वेरीफाई करके सब कुछ देके उसको फ्यूचर में मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। Then another important thing is the appointment of safety officer, because this is the person who has specially appointed to see that all the work is done under the standing operating procedures of safety, and they will actually monitor the construction site and see the safety related issues on that working site. And this person is actually appointed to ensure that health and safety of the staff and labor on the construction side are under close watch. अब यहाँ पे देखें हम कहते हैं कि जी बाकी प्रोग्राम भी हम कर लेंगे, हम जो है तो वो डिज़ाइनर को भी कर लेंगे, लेकिन अगर हम एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं वो एक बंदा कंटिन्यूसली इस चीज़ को देख रहा होगा कि वर्क साइट के ऊपर सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आपके एक्सीडेंट जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे और लोगों की जो भी वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाएगी। Now you can also improve the safety of the work site by using PPE like personal protective equipment. These personal protective equipment are the most basic front of protection and safety for workers, and these are the equipment which will ensure that the health of the workers are not being under threat, or different any accident would not happen. So there are various types of PPEs. That are PPE for head protection, for eye protection, for ear protection, for hand protection, and also for work on higher floors and respirators. So all these working equipment will help you to ensure your safety on work. सो आप ये PPE भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो है वो हार्म जो है वो मतलब जैसे अगर आप वो यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज़ कर रहे हैं जो आप वर्किंग साइट पे यूज़ करते हैं, आई प्रोटेक्शंस के लिए जो आप स्पेशल ग्लासेस यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ ग्लव्स वगैरह या और ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करता है कि वो आप जो है वो सेफली जो है अपना काम जो है वो कंप्लीट करें वर्किंग साइट पे। Now, as we have discussed in the start, that we do not see any practical progress done by the government or any other body in ensuring the health and safety of the people working in the workplace. But this act was approved in 2018, that is called as Pakistan Occupational Health Safety Act 2018. Actually, this act was introduced to ensure safety and safe and healthy working condition for the people at workplace, and also they provide authorizing enforcement of the rules and regulation developed under the act, and also assisting and encouraging the organization, institution, and geographic areas governed by federal government in their effort to ensure health, safety, working condition by providing for research, information, education, and training in the field of occupational health and safety. So ये जो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 में, और ये वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप जो हैं वो मतलब वर्क प्लेस के ऊपर जो है ऐसे मेजर्स किए जाएं कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो हेल्थ है वो सेफ्टी को अश्योर बनाया जाए, और ये आपको हेल्प करेंगे रिसर्च में, आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपको रिगार्डिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें कि आपके जो भी वर्किंग जो है वो एनवायरनमेंट है उसके बीच में हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रेफर किया जाए और वहाँ पर उनकी अश्योर किया जाए कि जो भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और जो है हेल्थ और जो भी इसकी हेल्थ है वो सेफ रहे और किसी भी तरह का उनको नुकसान ना हो।